So today we are moving towards the next chapter. But before we move into the next chapter, let me ask you some of the questions. Okay, basic questions जो हम लोग ने अभी तक एसपी में किए हैं. First of all, who are the members of the company? कौन होते हैं members of the company? Write it in the chat box. Very good, Sona. Bonus shares are generally issued to restructure a company's cash reserve. Although it is from net, but okay, correct answer है. Whenever the company is taking the, whenever the company is having the profit, whenever the company is having the extra surplus profit, at that time the company is issuing the bonus shares to the shareholders. Okay, shareholders को मिलता है. Distribution of treasury shares. Okay, Manasvi. Yes, correct. Okay, so just wait. Yes, Samir, correct. After the profit, the amount which is there with us, that is it is the bonus shares. Yes, that is also correct. See, we have already discussed that members जो होते हैं वो shareholders होते हैं. Contents of the letter, shareholder get dividend as the income, as a share of profit, and bonus shares we have already discussed. So in relation with this, we are starting with the new chapter, that is correspondence with the members. Okay, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. नाउ व्हाट डज द करस्पॉन्डेंस मीन्स? करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन सेक्रेटरी एंड द मेंबर्स. जब सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करता है रिगार्डिंग वेरियस टाइप्स, at that time we are saying that there is a correspondence with the members of the company. Who are the members? We have discussed that the members are the shareholders, investors of the company. अब इन्वेस्टर से हम लोग किस रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, किस रिगार्डिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं? उनको कितना डिविडेंड मिला है, उनको कितना अमाउंट पे करना है शेयर पे, द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज लेफ्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द शेयर्स, द पेमेंट ऑफ द शेयर्स कौन से वे से होने वाले हैं, उनको कौन सा शेयर मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, अगर डिविडेंड दे रहे हैं, इफ अगर पॉसिबल नहीं है डिविडेंड देना, तो एट दैट टाइम क्या होता है. ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर अलॉटमेंट हुआ, अभी आपको पता है अलॉटमेंट क्या होता है. व्हेन द कंपनी इज कलेक्टिंग द मनी एज अ फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो जब कलेक्ट हो जाता है तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स को. ओके, बहुत सारे लोग उस शेयर को लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल दी शेयर होल्डर्स. जितने भी इन्वेस्टर ने हम लोग के पास पैसा दिया, उनका सारा का सारा पैसा हम लोग ले. हो सकता है कंपनी थोड़ा ही पैसा ले. तो जब अलॉटमेंट नहीं होता है, किसी को नहीं मिलता है शेयर किसी को, एट दैट टाइम कंपनी रिग्रेट लेटर सेंड करती है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. कंपनी अलॉटमेंट लेटर सेंड करती है, कंपनी रिग्रेट लेटर सेंड करती है. तो इन दिस वे देयर इज अ करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स. ओके, सो पहला हम लोग देखते हैं अबाउट द करस्पॉन्डेंस. Okay, who is going to read the slide? Raise your hand. Yes, who is going to read the slide? Yes, Kashish, read. Introduction. Shareholders are owners who contribute capital for the company. Yes. As the CEO of the company, the secretary comes into contact with all the members through correspondence. Secretary acts as a link between the directors and members. The secretary has to communicate the decision of the management and other information to members by through correspondence. The secretary should be very cautious and careful while corresponding with members of company. Yes. See, shareholders are the owners of the company. Why they are the owners? Because they are contributing the capital. They are investing the money in our business. Okay, they are investing the money in our company. That is, अगर मेरी कोई कंपनी है, मुझे वहां से पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो मैं शेयर होल्डर से ले सकती हूँ वो पैसा. Okay, and they will get the share certificate in the return and the dividend and the return as the return. Okay, so shareholders are the owners of the company. As the CEO of the company, as a CEO मतलब जो हम लोग का मैनेजमेंट पूरा संभालता है, as a CEO the secretary comes into contact with all the members. सबसे जो कनेक्शन है वो कौन रखता है मेंबर्स से? सेक्रेटरी रखता है.
ओके आप लोग को एक कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आगे चल के, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी का सेक्रेटरी बनया। अब सेक्रेटरी मतलब दैट्स नॉट सेक्रेटरी जो आगे पीछे घूमे, सेक्रेटरी मतलब जो ये सारे काम करे, दैट इज करस्पॉन्डेंस रखे मेंबर्स के साथ, डिबेंचर होल्डर्स के साथ, डिपॉजिटर्स के साथ कंपनी का। तो सेक्रेटरी को एक सबके साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है, जितने भी मेंबर्स है जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके साथ। सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जो हम जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं एट द लेवल, ओके, डायरेक्टर्स जो रिप्रेजेंटेड और मेंबर्स जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ओके, उनके बीच में कौन लिंक है? ये सेक्रेटरी है। कैसे लिंक मतलब क्या है? अब देखो, डायरेक्टर्स ने कुछ डिसीजन लिया, ओके, डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट द मनी, स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। अब ये काम कौन करेगा शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने का, कि हम लोग शेयर होल्डर्स से थोड़ा पैसा लेंगे, थोड़ा पैसा डिपॉजिटर्स से लेंगे। तो ये काम कौन करेगा बीच में? एज अ सेक्रेटरी। Secretary will be linked between the directors who are the representative of the company and the members who are the shareholders of the company. The secretary has to communicate the decisions of the management, जो भी decision लेगी management, that is board of directors, and the other information to the members. जो भी members को information देनी है या फिर कुछ decision लिया है company ने, तो वो correspondence के through जाएगा। correspondence means letters वगैरह के through जाएगा, okay, to the members. The secretary should be very cautious. Cautious का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम लोग को संभाल के एक एक वर्ड जो है हम लोग को अच्छे से लिखना है, एकदम प्रेजेंटेशन के साथ आपको लेटर बनाना है, एकदम एक एक वर्ड जो होगा वो भी ध्यान से लिखना है। एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के मेंबर्स से कम्युनिकेट करना होता है, एट दैट टाइम हम लोग को हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, हम लोग को ऐसा कुछ यूज नहीं करना है जिससे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को हार्म हो। इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वेन एवर यू आर राइटिंग द लेटर, जब आप पहले लेटर लिखते थे तब आप समझो प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते कि आप लोग को छुट्टी चाहिए, ठीक है, आप लोग प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे थे कि आप लोग को फॉर 1 वीक और 2 वीक्स यू नीड हॉलीडे फॉर सम फंक्शन अटेंड। तो आप लोग क्या उस टाइम पे ऐसे ही कुछ भी लिख देते थे? यस, आंसर इन द चैट बॉक्स। आप लोग क्या उस टाइम पे कुछ भी लिख देते थे? नो, राइट? यस। तो एकदम सोच समझ के लिखते थे कि हम लोग को पहले प्रिंसिपल को अपना एड्रेस लिखना है, फिर प्रिंसिपल का अच्छे से एड्रेस होना चाहिए, यस, रिस्पेक्टेड मैम होना चाहिए, करेक्ट समझिए। उसके बाद जब आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखते थे तब भी जब आप उसमें भी ऐसे वर्ड्स यूज करते थे कि रिस्पेक्ट भी दिखे एंड आपका जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाए। तो इन दिस वे द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस। जब हम लोग जो एक सेक्रेटरी है वो भी जब शेयर होल्डर से बात करता है तब उसको भी कॉशियस और केयरफुल रहना है while corresponding with the members of the company. Okay, in this way there is a correspondence with the members. Okay, now next is what precautions to be taken by secretary while writing the letter, that is while corresponding to the members of the company. Okay, who will going to read the slide? कौन read करेगा slide? Yes, raise your hand. Who will read the points? Should I call out the name or you are raising your hand by yourself? Okay. Yes, Kaustubh, read. Precautions to be taken by secretarial while corresponding to the members. Image of company, correct information, digital language, promote response, security, politeness, legal matters, consideration. An image of company. Okay. See, what are the precautions that the secretary need to take? अब जब secretary letter लिख रहा है उस टाइम पे हम लोग को कौन सी जो है बातों का ध्यान रखना है? First of all, correct information.
आप लोग आगे चल के देखोगे जब आप लेटर बनाओगे ना, तब आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, करेक्ट इंफॉर्मेशन क्यों हो सकता है, अभी लेटर जो है जब आप लिख रहे हो उसमें क्या लिखना था आपको, द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर को शेयर्स मिलने वाले हैं। एट दैट टाइम आपने गलती से 100 के बदले 90 लिख दिया, तो जो 10 शेयर्स का पैसा उसने दिया होगा वो कहाँ पे जाएगा, राइट। तो हर बार सेक्रेटरी को नीड्स टू प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द लेटर। ओके, मैं आपको एक लेटर दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे एक जो लेटर था उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अभी देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, कितने दिया उसको 100। अब 100 के बाद मैंने समझो 90 शेयर्स लिख दिया गलती से, तो शेयर होल्डर को ऑब्वियसली गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, और शेयर होल्डर किसको बाद में आके बोलेगा, कंपनी को। तो हमेशा सेक्रेटरी को करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, नेक्स्ट इज लूसिड लैंग्वेज। अब लूसिड लैंग्वेज क्या होता है, द सेक्रेटरी मस्ट यूज द सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, और ऐसा कन्वीनियंसली हम लोग को बोलना है कि जो मेंबर्स हैं वो मान जाए। अब मैंने देखो, अगर आपका एक जो हम लोग एग्जांपल पहले वाला कंटिन्यू करते हैं, जब हम लोग प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं ऐसे वैसे लिखते थे कि हम लोग के जो प्रिंसिपल हैं, हम लोग के जो एडिटर हैं, या तो एडिटर को कभी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख दिया लेटर, तो एट दैट टाइम हम लोग कैसे ऐसी लैंग्वेज यूज करते थे सिंपल, ताकि उनको भी समझ में आए और हमारा जो मैसेज है उन तक पहुंचना चाहिए, राइट। अगर मैं उसको ही इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखूं, ठीक है, अगर मुझे कोई भी सेंटेंस लिखनी है उसको सेंटेंस को भी बराबर नहीं लिखूं मैं, तो क्या वो मैसेज जाएगा, क्या वो लेटर का मकसद पूरा होगा, नहीं। द लेटर विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई, लेटर ही जस्टिफाई नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है। तो लूसिड लैंग्वेज दैट इज द यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, और कन्विंसिंग स्टाइल में लिखना है, ऐसे नहीं कि लेटर पढ़ के सामने वाले को गुस्सा आ जाए। ओके, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लूसिड लैंग्वेज होनी चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं लेटर्स में, शुड नॉट बी रिटन, इजी टू अंडरस्टैंड वाला लेटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। The secretary must be prompt in sending the replies to the letters received from the members, या फिर questions या फिर queries अगर कोई शेयर होल्डर पूछ रहा है। For example, the shareholder is asking when will I get the share certificate, तो सेक्रेटरी को 2-3 महीने रख नहीं देना है उसका लेटर, उस लेटर का रिप्लाई करना है हम लोग को, वैसे प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है, दैट इज immediately whenever the secretary is receiving the letter from the shareholder, at that time the secretary has to respond। रिस्पॉन्स भी कैसा होना चाहिए कि वी आर गेटिंग टू योर, हम लोग का आपका नोटिस मिला है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं आपके पास शेयर सर्टिफिकेट पहुंचाने की, या फिर अगर नहीं पहुंचा सकते हैं तो वो रीजन लिखना है कि इन फॉर दिस रीजन वी आर नॉट एबल टू रीच यू, काइंडली मैसेज इन दिस। तो ऐसे करके प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना है, और लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, सीक्रेसी। Next is secrecy. अब whenever we are talking about secrecy, we should not disclose the any confidential information of the company to the members। अब देखो कंपनी की दूसरी भी इंफॉर्मेशन होती है जो मेंबर्स को हो सकता है नहीं बताई जाती हो सकता है मेंबर्स के वो काम की नहीं हो, तो एट दैट टाइम सेक्रेटरी को काम से काम रखना है। जितना पूछा गया है, अभी समझो यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने पूछा कि मेरा शेयर का नंबर कौन सा है, तो शेयर का नंबर बताना है, पूरी कंपनी की हिस्ट्री नहीं बतानी है, तो सीक्रेसी रखनी है। द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर। एक टेक्टफुली आंसर करना है, द सेक्रेटरी शुड टेक्टफुली आंसर सम लेटर्स विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ओके, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दिए बिना टेक्टफुली दिमाग से उसको वो लेटर लिखना है। नेक्स्ट इज पोलाइटनेस एंड कर्टसी। कर्टसी, अ courteous letter shows sympathy, respect and mutual understanding। पोलाइटनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं रूड लैंग्वेज नहीं, रूड लैंग्वेज जो है उससे नहीं लिखना चाहिए। अगर मैंने ऐसे लिख दिया शेयर होल्डर को कि प्लीज कीप योर information with you, do not share with any other person, this is not the way, this is how you can do this। अगर मैंने ऐसा सब रूट वगैरह लिख दिया तो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं। तो in this way the secretary has to reply with the politeness, with the courtesy। Okay, next is legal matters। The secretary should compulsory follow the legal provisions given by the Companies Act 2019। ओके, कंपनीज एक्ट जो है 2019 उसको वो फॉलो करना है।
ओके अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो कंपनी को ही पेनल्टी लेनी पड़ेगी। ओके आफ्टर कंपनी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, अगर किसी ने भी कुछ भी किया तो हम लोग के ट्रस्टीज वगैरह जो हैं, डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, डिपॉजिट ट्रस्टी हो गया, दे विल टेक द एक्शन और एनसीएलटी में कंप्लेन जाएगी, दैट इज yes sorry 2013, yes I have written 2013 but by mistake I have told another year, so 2013 सी हम लोग ने पहले पढ़ा था कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी या ये शेयर होल्डर्स के जो होंगे या फिर डिपॉजिट ट्रस्टी होंगे, दे विल टेक द एक्शन, और कौन एक्शन लेगा, एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल टेक द एक्शन, और अगर हम लोग ने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया। सो सेक्रेटरी को ध्यान रखना है while corresponding while drafting the letters that the secretary must consult with the legal advisor से consult करके ऑन दी सर्टन मैटर्स, जो सर्टन कुछ मैटर्स हैं जिसमें लीगलिटी इन्वॉल्व है, तो वो लीगल एडवाइजर से कंसर्न करके फिर ही लेटर्स लिखना है, ओके रिप्लाई करना है। ओके सो दैट इज द लीगल मैटर, द सेक्रेटरी शुड फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। The writer should due the importance and consider to the reader and consider the problems of the member. While sending the negative replies, he should draft the letters more carefully so that the member should not get hurt. Why? Because अभी देखो for example the allotment किसी का नहीं हुआ, ठीक है, किसी को shares नहीं मिले, तो जब regret letter send करते हैं ना, एक regret letter send करता है कि we are not able to say we are not able to allot you the shares, तो उस टाइम पे रिग्रेट लेटर टाइप करते टाइम पे ऐसा लैंग्वेज यूज करना है कि शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को हर्ट नहीं हो। अगर हर्ट होगा दे विल नॉट इन्वेस्ट इन कंपनी, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर तक बात पहुंच जाएगी और सारे शेयर होल्डर हमारे कंपनी से पैसा ले लेंगे, कोई हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो एट दैट टाइम हम लोग को कंसिडर करना है उनकी फीलिंग्स को। यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन द प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर, अगर कोई मेंबर को प्रॉब्लम है तो उसको प्यार से रिप्लाई करना है, उसको रूडली रिप्लाई नहीं करना है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज इमेज ऑफ द कंपनी। whenever we are talking about the image, तो सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि हम लोग का जो कंपनी का रेप्यूटेशन है वो नहीं खराब होना चाहिए। अगर मैंने किसी को हार्श रिप्लाई दे दिया, किसी को रूड रिप्लाई दे दिया, तो वो हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचेगा, कंपनी का नेगेटिव इमेज जाएगा नहीं जाएगा। तो इन दिस वे द सेक्रेटरी हैज टू ट्राई टू पुट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। सेक्रेटरी हैज टू ट्राई इट्स बेस्ट कि वो सारे क्वेरीज, सारे डिफिकल्टीज, सारे डाउट्स जो है मेंबर्स के वो सॉल्व करे। So in this way, the company has to take the precautions. The secretary has to take the precautions while they are writing the letters to the members. Okay. Which are the circumstances under which the secretary has to enter into the correspondence with members? Correspondence में कौन से लेटर्स सेक्रेटरी को लिखने हैं, कौन सी सर्कमस्टेंसेस पे लिखना है। पहला तो अलॉटमेंट लेटर, जब कंपनी जो है अलॉट करेगी कुछ शेयर्स शेयर होल्डर को, एट दैट टाइम उसको इशू ऑफ सर्टिफिकेट, तब लेटर लिखना है। एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू, अगर राइट इशू हम लोग ने डिस्कस किया है, दैट द कंपनी विल गिव द राइट शेयर्स टू द shares to the existing shareholders। उस टाइम पे डिविडेंड मैंडेट के टाइम पे we will see डिविडेंड मैंडेट धीरे धीरे करके। रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी रिफ्यूज कर रही है कि हम लोग आपके ट्रांसफर नहीं करेंगे शेयर्स किसी और को। हम लोग ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के टाइम पे ये टॉपिक पढ़ा था कि द कंपनी कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर उसने अच्छे से प्रॉपरली फॉर्म नहीं भरा है, उसका अपना शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया है। वो टॉपिक पे एक बार थर्ड चैप्टर में जाना तो आपको पता चलेगा। ओके सी ये थर्ड चैप्टर है आपका, आई विल शो यू। सी हम लोग ने ये टॉपिक किया था, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इन दिस टॉपिक वी हैव डन की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, सो एट दैट टाइम द कंपनी कैन रिफ्यूज द शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, नोटिस दे रहे हैं कि आपका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है। रिग्रेट लेटर दैट द कंपनी इज नॉट एबल टू अलॉट यू द शेयर्स। ओके
नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस जो हैं, यस, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स जो हम लोग आपको देना चाहते हैं तो तब लेटर लिखना है। लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड देते टाइम हम लोग को लेटर लिखना है। अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नाउ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उसके लिए भी लेटर लिखा जाता है। कुछ जनरल मीटिंग होने वाली है, एजीएम होने वाला है, एजीएम द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ओके, ये याद रखना हमेशा, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे एजेंडा है लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग। नोटिस और एजेंडा, एजेंडा मीन्स हम लोग मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द जनरल मीटिंग, वो होता है एजेंडा। नेक्स्ट इज नोटिस और एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग, नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इसके लिए लेटर लिखा जाता है। Notice and agenda of same, it is written. Reply to certain queries raised by the members, अगर कुछ रिप्लाई करना है उसके लिए लेटर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सबको समझा इतना? राइट इट इन द चैट बॉक्स। है डायरेक्टर्स, करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन। सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स शुड बी डैश, सेक्रेटरी का करस्पॉन्डेंस कैसा होना चाहिए? बहुत लेंदी होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टकट में सब लिख दो, या फिर प्रॉम्प्ट, जल्दी एंड प्रिसाइज, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है। व्हाट विल बी द ऑप्शन? लेंदी, शॉर्टकट और प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। Secretarial correspondence with the members should be dash. It should be lengthy, or it should be shortcut, or it should be prompt and precise. Yes, only one student is there in the class. Very good, Rajni. Very good, Samir. Third option, that is prompt and precise. Okay, now tell me what precautions to be taken by the secretary while corresponding with the members. कौन से हम लोग को precautions लेने हैं? Okay, whenever the letter topic will come ना, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? Write a letter to the shareholder for the issue of share certificate. क्वेश्चन क्या होगा आपका? Write a letter to the member for the issue of share certificate. ठीक है, तो आप लोग को इसमें कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है? Okay, who is going to read the slide? Yes, who is going to read the slide? Raise your hand. Okay, I will read the slide. A share certificate is registered document of title of shares issued by company under common seal, duly stamped and signed by at least 2 directors and countersigned by secretary of company. Second, every company must issue or dispatch a share certificate to the allot within 2 months after allotment of shares. Third, as per request of the allot, to company sends the letter for issue of share certificates. Fourth, the letter contains the information about issue of share certificate such as folio number, share certificate number, distinctive number of shares, total number of shares, etc. Fifth, according to SEBI circular of the companies are required to send share certificates by registered post. Yes. See, अभी आपको जब शेयर सर्टिफिकेट बनाओगे तो मैं आपको एक एक चीज दिखाती जाती हूँ। ओके, पहले तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? What is share certificate? Share certificate is a registered document of the title of shares. एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर का टाइटल जो होता है, that means we are giving the share certificate as an acknowledgement कि आप लोगों ने हम लोग को पैसा दिया है। Now this is the title of shares, जो आपने शेयर्स भरे हैं, पैसा दिया है, उसके बदले आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। इशूड बाय द कंपनी अंडर कॉमन सील, कॉमन सील होगा जो ड्यूली साइंड होगा, साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और काउंटर साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। आप देखोगे ना लेटर में, अब आप लेटर में देखो यहाँ पे क्या है, साइंड है, देखो यहाँ पे साइन किसकी है? कंपनी सेक्रेटरी की। ओके, तो इन दिस वे कंपनी सेक्रेटरी का साइन आ जाता है लेटर में। नेक्स्ट, every company must issue or dispatch a share certificate to allotee within 2 months. 2 महीने के अंदर हम लोग को शेयर सर्टिफिकेट जो है देना पड़ता है
after the allotment of shares, the allotment of procedure of allotment of shares has been completed. Now it is time to give the share certificate to the members. कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 2 months के अंदर होना चाहिए. ओके कितने महीने के अंदर होना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट देने का काम? 2 months के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी जिसको हम लोग ने शेयर सर्टिफिकेट देना है, कंपनी सेंड्स द लेटर फॉर द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. पहले उसको इन्फॉर्म करना है. देखो जब सब्जेक्ट लिखोगे तब भी ऐसे ही आएगा. सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि आप लोग ये लेटर में आप क्या लिखना चाहते हो, तो सब्जेक्ट में यही आएगा, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. देखो वही लिखा है कि हम लोग को अलॉटी को इन्फॉर्म करना है दैट कंपनी इज गोइंग टू वी आर गिविंग द शेयर सर्टिफिकेट टू यू. अब लेटर में क्या क्या आएगा? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. ओके इस लेटर में क्या आएगा? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एज अ सब्जेक्ट. नेक्स्ट फोलियो नंबर आ जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर. ओके दैट इज ये टेबल बनानी पड़ेगी आपको. इसके लिए फोलियो नंबर आएगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर आएंगे, डिस्टिंक्टिव नंबर्स मतलब आपको शेयर सर्टिफिकेट का नंबर जो ऊपर होता है ना, शेयर सर्टिफिकेट के नंबर होता है. ये शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, ये लेटर है. किसके बारे में? कि हम लोग शेयर सर्टिफिकेट आपको देने वाले हैं. कौन से शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होगा? 301 से 400 तक आपको नंबर दिया जाएगा. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आपको दिए जा रहे हैं? 100 शेयर्स दिए जा रहे हैं. तो ये आपको इस लेटर में लिखना है. ओके according to SEBI's circular, SEBI that is Securities Exchange Board of India. Okay again I'm saying Securities Exchange Board of India, उनके सर्कुलर के हिसाब से कंपनीज को शेयर सर्टिफिकेट कैसे सेंड करना है? बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट. विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट दे आर गोइंग टू सेंड द रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ द पोस्टल सर्विसेज दैट इज उनको लेटर जाएगा पोस्ट के थ्रू. ओके रजिस्टर्ड एड्रेस पे. In this way there is a issue of share certificate. In the next lecture we are going to see how to write the letter. ये issue of share certificate का लेटर लिखा कैसे जाता है, कौन सी डिटेल्स हम लोग को डालनी पड़ती है इसमें. ओके